हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैडकैप्स। सो हमारी सोसाइटी में ये बहुत कम देखने को मिलता है कि एक इंसान एक ही टाइम पे एक से ज्यादा प्रोफेशनल रोल्स को सक्सेसफुली निभा पा रहा हो। बिकॉज इट्स नॉट दैट कॉमन टू सी कि अ डॉक्टर इज ऑल्सो अ डांस इंस्ट्रक्टर या फिर अ टीचर इज ऑल्सो अ फैशन कंसल्टेंट। बट आई वॉज लकी इनफ टू मीट मिस्टर अभय महेश्वरी, who is a business consultant, a storyteller and a podcaster. उनसे मैं जब भी कनेक्ट करती हूँ, हर बार उनके अचीवमेंट्स में एक ना एक और एडिशन हो चुकी होती है। फॉर अ स्टार्ट, he already has a 24 episodes podcast by the name of Lal Chashma on Audible, Spotify, Ghana, all the platforms. He was also the winner of Geo7 Podcaster Hunt in 2021. After which, he launched another podcast by the name of 2BHK with Geo7. He was also recognized as India's top 10 podcasters by Ghana. And recently, he was titled as top 3 audio creators in India by Pepper Content. And I believe उनकी जर्नी से हम बिल्कुल ये समझ सकते हैं कि it's always possible to keep your job security and to pursue your passion. So let's connect with him and know more about his interesting hustle and the role of a podcaster, and also know how difficult or easy was his journey of finally becoming a madcap. Hi Abhay, thanks a lot for joining in. Welcome to Madcaps. So I think हमारा जो आज का एपिसोड है, इससे हमारी ऑडियंस को दो तरह से फायदा होगा। एक तो डेफिनेटली उनको पता लगेगा कि पॉडकास्ट जो रोल है, इसका क्या ग्रोथ है, क्या रिक्वायरमेंट है, इसके फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या है, वगैरह वगैरह। एंड ऑल्सो एक खास चीज के जिस तरह से हमारे सोसाइटी में आसपास टैग्स बना दिए जाते हैं कि ये एक इंसान एक टीचर है, ये एक इंसान डॉक्टर है, बट व्हाई नॉट अ टीचर स्लैश डांसर, व्हाई नॉट अ डॉक्टर स्लैश म्यूजिशियन, व्हाई नॉट अ बिजनेस कंसल्टेंट स्लैश पॉडकास्टर स्लैश स्टोरी टेलर। तो आई थिंक जो आपकी जर्नी है ये जरूर हेल्प करेगी एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए हमारी ऑडियंस के लिए। सो थैंक्स अ लॉट फॉर joining in. And why don't we start with a quick description of one of your roles? So, who is a podcaster? So, a podcaster, I am somebody who likes to talk. Okay? As a personality, I'm an extrovert, like to meet people, like to talk around things. As a thinker, I'm a generalist. You know, I don't get fixated by one particular idea, on one particular expertise. I like to explore everything because there's so many things that are happening, right? So I think me as a podcaster is somebody who's been able to put a lot of his life experience through his extrovert nature in form of stories. And I, as a podcaster, grew as a storyteller slash podcaster, right? The hyphenated identity that I had. And in general, a podcaster is anyone who is using podcast as a medium. It could be a video podcast or it could be an audio podcast. The term originates from Apple when they had launched their iPod long back in early 2000s. So podcast essentially means uploading small snippets or basically episodic snippets of audio onto the medium for people to listen actively or passively. It's not live. It is usually pre-recorded, doesn't go live. And unless you do like a special bonus episode in a video podcast, because nowadays YouTube Live or Facebook Live facilitates that for you. But the original definition is that it's kind of pre-recorded, good sound engineered, good sound effects if it's a fiction podcast. If it's a non-fiction conversation or if it's a non-fiction monologue, it has its own different elements. Anyone who's doing this activity is called a podcaster. And usually the intent is like how you have a YouTuber who brings in their expertise through the form of video. You can simply say that a podcaster primarily brings it through the form of audio. I think हर जो क्रिएटिव इंसान होता है ना, उसकी लाइफ में एक मोमेंट आता है जब उनको लगता है कि यार ये एक चीज है जिसमें मैं बाकी आसपास के लोगों से बहुत बेहतर हूँ। तो वो स्पेसिफिक इवेंट आपकी लाइफ में वो कब आया? मुझे ये नहीं पता कि मैं बेहतर हूँ या नहीं बाकियों से, बट एक ये इवेंट हुआ था. So when I joined my current company where I'm working right now, they used to have a public speaking club, and उसमें मैं बड़ा fascinate हो गया था. मतलब I was never into literature, never into speaking,
But gradually, just to have a little bit of bigger network of people to meet and speak to, ताकि मैं अपने कुएं का मेंढक ना बन जाऊं कि अपने प्रोजेक्ट में बैठा हुआ हूं, तो मैं वहां पे जाने लगा, वहां से धीरे धीरे एक स्किल बनने लगा. And over a span of 2.5 years, I started seeing that whenever I would go on stage and perform and share my stories, people would really connect with it. But I never thought of it कि मैं औरों से अच्छा हूँ या क्या हूँ. मुझे ऐसा लगता था एक स्किल है, काफी लोगों के पास होता है, हम ले आ सकते हैं. December 2019 specifically I remember because I was very sick. I was very tired, and एक रात को मैं अपना ही ऑडियो मैसेज मैंने किसी को भेजा था WhatsApp पे, and मैं वो ऐसे प्ले कर लिया था सुनने के लिए कि भाई क्या कन्वर्सेशन चल रही थी. And suddenly it hit me कि most of the times whenever I would go on stage, people would say यार आपकी आवाज बहुत अच्छी है, बड़ी engaging है, सुन के बड़ा अच्छा लगता है, वॉइस मॉड्यूलेशन बड़ी अच्छी आती है, कैरेक्टर आप जब बताते हो तो बहुत it's like a visual imagery right in front of you. And that's exactly what happened on in mid-December 2019 on that night, that I realized कि हाँ यार आवाज तो अच्छी है, like मतलब because usually क्या होता है ना कि when people give you compliments you get नहीं जी नहीं ठीक है because Indian society specifically has trained us kids to not take compliments even though we know that they are true, but हम वो उसको अच्छे से पचा नहीं पाते. तो मेरी भी वो आदत थी, लेकिन उस रात पता नहीं क्या हुआ कि मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं लोग सही कहते हैं. What happened in January 2020 is there was a workshop being conducted in a spoken word festival here in Mumbai, and they were speaking about podcasting and audio as a medium. And I have always been fascinated by audio because I was a very avid radio listener. वॉकमैन मेरे कान में पड़ा रहता था, कॉलेज में भी मैं बहुत रेडियो सुनता था, तो आई लाइक द होल कॉन्सेप्ट एंड आई गॉट वेरी फैसिनेटेड. एंड देन आई एम लाइक यार लोगों को भी पसंद आती है अपनी आवाज, तो ये तो प्योर आवाज वाला मीडियम है. So that's how the entire journey started. But to answer that specific moment, I think December 2019 is when I kind of finally realized कि यार कुछ है अपने अंदर शायद जो लोगों से कनेक्ट हो जाता है जब एक दिल से जब एक कहानी के फॉर्म में निकल के आता है या किस्से के फॉर्म में निकल के आता है. एंड आई थिंक जो आपने चीज कही कि हमारी इंडियन सोसाइटी में ये बच्चों के लिए मुश्किल होता है ये समझना कि किसी कॉम्प्लीमेंट को एक्सेप्ट कैसे करें, उसको समझे कैसे, और उसमें जितना टाइम निकल जाता है और हम समझते रह जाते हैं कि नहीं शायद जस्ट ह्यूमिलिटी के लिए कोई बोल रहा है, बट और हम खुद विश्वास नहीं कर पाते कि हम बेहतर हैं इस चीज में और कर सकते हैं कुछ इसमें भी. ओके, सो पॉडकास्टर रोल की जैसे बात करें तो एक इंडियन सोसाइटी की फिर से मेंटालिटी अगर देखी जाए तो अगर कोई नया करियर बनाने का सोचता है एक मिडिल क्लास फैमिली से, तो उनके दिमाग में आता है कि यार इस रोल में ग्रोथ होगी या नहीं होगी. एंटर तो कर दिया और इसमें प्रोफेशनल करियर के लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, पढ़ाई में, कोई सर्टिफिकेशन में, कोई स्किल के लिए, तो वो अगर सब चीजें देखी जाए तो वो पॉडकास्टर रोल के लिए क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि although podcast as a concept has been existing in the West for almost 10 to 15 years now, in India it got recently introduced. Like when I say recent, it is like 2 years, 2.5, 3 years, right? In fact, it picked up pace unexpectedly during the last year COVID lockdown, where there were so many creators who came out and started finding some hobby. Podcasting became one, or they started listening to something. क्या कितना ही पूरा दिन screen fatigue जो हो रहा था, so this became a little bit of respite that way. So in short, I would summarize that in India right now, being a podcaster, you are at a stage where YouTube was 15 or 10 years ago. ठीक है, तो आप जितने भी बड़े यूट्यूबर्स को आज देखते हैं उनकी जर्नी हमेशा आप देखेंगे 2005 2007 में उनके पहले वीडियोस. I'm not talking about select few जो एकदम shoot up कर गए, but those who gradually experimented with it, gradually built up their base, had a job or probably had other interests. तो 2005 से आप देखेंगे कई सारे यूट्यूबर्स हैं. ग्लोबली भी आप देखें तो कुछ यूट्यूबर्स हैं जो अपनी 15 साल की उम्र से कर रहे हैं और अब जाके 20-25 साल के हुए हैं. तो दैट इज वेयर इंडिया इज राइट नाउ. द ओनली डिफरेंस इज दैट 15 साल पहले टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं थी, तो चीजों वीडियोस की क्वालिटी, वीडियो में एक्सपेरिमेंटेशन, सॉफ्टवेयर अडेप्टेशन बहुत स्लो हुआ, एक ग्रेजुअल प्रोसेस में हुआ. आज वो एक सर्टेन बेंचमार्क लेवल पे है, एक पेडेस्टल पे है. All any podcaster has to do is just go get it off the shelf, use it, and they can create a very, very good fiction or a non-fiction podcast very quickly. So in India it is at that stage, but it will grow very rapidly. Being a professional career, it will still take some time. See, there are a lot of companies, like Spotify, JioSaavn, Gaana, the big companies,
which have their own podcast divisions, and there are teams that are dedicatedly making originals, and they're working towards promoting local content, regional content, more importantly, right? So one way to get a job is that you start something, you eventually gain some expertise and move into these industries, right? Or get either into the business part of it or in the creative part of it. The other approach is there are, apart from the big leading audio firms, आपके पास कुछ प्रोडक्शन हाउसेस भी हैं, यू नो, लाइक स्टार्टअप्स. जैसे यूट्यूब में आपके पास टीवीएफ है या कुछ अलग मीडिया कंपनीज हैं. मैं उसी से इक्वेट कर रहा हूँ कि यहाँ पे भी कई सारे ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस हैं जिन्होंने उस ग्रोथ को एंटिसिपेट किया है और उसके लिए इन्होंने शोज बनाना चालू किया है, राइट? तो आप अप्रोच कर सकते हैं. तो जैसे आपने कहा कि एज एन इंडिविजुअल पॉडकास्टर एडिटिंग हो गया, लिखना हो गया, वो सब, एंड किसी गेस्ट पे अप्रोच करना, वो सब खुद से करना होगा. तो आपके लिए भी, आपने एज एन इंडिविजुअल शिप शुरू किया था, तो आपके लिए भी ये सब मुश्किल था उतना ही या इजी गोइंग था फिर भी? मैं मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने जब चालू किया था तो मेरे लिए एक क्रिएटिव आउटलेट था, अभी भी एक क्रिएटिव आउटलेट है. तो मैं इसे ऐसा टास्क नहीं मानता कि यार अरे ये करना है. मैंने जब चालू किया था, और अभी भी मैं ये कहता हूँ कि यार ठीक है, जब थॉट आए, जब ब्रेन को सही लगे कि हाँ अभी यू आर इन द मूड टू प्रोड्यूस समथिंग, राइट समथिंग, देन यू गो अबाउट इट. The thing in my case is because I write stories, so उसकी पूरी इंस्पिरेशन, रिसर्च, वो सारा मेरे ऊपर ही है, and उसको लिखना भी मेरे ऊपर है. So you know, I can't. It's not dependent on somebody else that I'm trying to reach out to somebody, schedule an interview, you know, just having a chat and then simply editing. There's a certain amount of story that I want to talk, which should be themed around my podcast. उनका ध्यान रखना पड़ता है, क्वालिटी का ध्यान रखना पड़ता है, राइट? मतलब अगर आप क्वांटिटी के चक्कर में फंस जाएंगे तो फिर वो क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी वाली जो एक एवरलास्टिंग डिबेट है, यू नो, वहां पे भी एक एलिमेंट आता है. तो मेरे साथ भी हाँ, मतलब स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स हुए, अभी भी होते हैं. वो यू नो, विद अ फुल टाइम जॉब कि यू नो वीकेंड टू वीकेंड आपको टाइम मिलता है, आपको कोई थॉट आता है वेडनेसडे को, लेकिन लिखते आप सैटरडे को, और उसको फिर रिफाइन अगले सैटरडे करते हो. तो बाय द टाइम वो एपिसोड बन के आता है, तो जहां से शुरू हुआ था और जो बना था वो तो पूरा ही चेंज हो गया, right? But I enjoy this process, so it never became like a task or a struggle for me. I loved it. Fortunately, the people also who heard it and listeners also liked it. तो वो एक अच्छा कनेक्ट आ गया. तो बट हाँ, अगर आप खुद कर रहे हैं तो ये सारी चीजें फिर यू नो 3-4 सॉफ्टवेयर सीखना, अगेन लाइक आई एम नो यू नो सॉफ्टवेयर विज़ार्ड. आई एम बिलो पॉवर्टी लाइन व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी, ठीक है? तो उन सब चीजों के लिए मुझे सीखना पड़ा. इंस्टाग्राम पे मैं नहीं था, बट सारे लोग बोलते हैं यार अब तुमने पॉडकास्ट बनाया है, दुनिया को तो दिखाओ. तो मुझे लगा दुनिया ढूंढ लेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता. तो फिर लाइक मैं इंस्टाग्राम पे आया, मुझे अभी भी रील्स डालना नहीं आता, मैंने अभी तक रील्स ही डाली है. स्टोरीज जो मैं डालता हूँ इंस्टाग्राम पे, उसमें जो फॉन्ट्स ऑटो सिलेक्टेड है वही है. मतलब दैट इज नॉट, इफ यू गो एंड सी एनी स्टोरी दैट्स बीन देयर फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 2 years, तो सेम एक दो फॉन्ट में मैं जगल करता हूँ. मेरे को फिल्टर अभी भी नहीं पता कैसे लगाते हैं. मैं डर लगता है अपलोड करते हो, क्या मैं खींचना कुछ और चाह रहा था, कहीं और बटन ना दब जाए. सो दीज आर माय स्ट्रगल दैट वे कि यार ये एक नई चीज मुझे सीखनी पड़ रही है. एंड इट मे साउंड एज इफ आई एम वेरी ओल्ड और समथिंग, बट इट्स जस्ट दैट इनर्शिया दैट आई वाज नेवर अ सोशल मीडिया फ्रेंजी काइंड ऑफ अ पर्सन. आई एम लाइक ठीक है, इट इज जस्ट टू मेक यू नो, जस्ट टू कीप नोइंग के लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, बट नॉट टू गेट टू मच इन्वॉल्व. तो उधर फिर सोचना कि एपिसोड अच्छा निकाल दिया तो इसकी मार्केटिंग करना, 4 लिंक्स को 10 जगह पे शेयर करना, that became, so it's a one-man army job then, right? If you are doing it, then you are doing it. But I loved it. I loved the part that after Monday to Friday, Saturday आधा दिन मैं निकाल देता था ये सोचने में कि यार Instagram पे ये लाइन लिखूं या ये लाइन लिखूं, कैप्शन क्या होगा, you know, ताकि लोगों को थोड़ी जर्नी पता चले, things like that, which was a new thing for me because I wasn't doing it before on a regular basis. So I loved it, enjoyed it. The novelty factor really played a big role. And yeah, that I thoroughly enjoyed it. But yes, indie creators, if you are an indie creator, the more the more your podcast picks up momentum, the more expectation audience will have from you. And if you are the one who decided that तुम ही करोगे, तो भाई मतलब दिक्कत होगी थोड़ी, लेकिन उसका फिर अपना फन भी है. वो जब निकल जाता है फेस तो मजा भी आता है. मजा भी आएगा, राइट? ओके, तो जैसे आपने वो नॉवेल्टी फैक्टर की बात की, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही था कि जैसे अगर कोई प्रोफेशनल करियर की तरह इसको सोचता है, तो इसका रेवेन्यू मॉडल क्या है पॉडकास्ट का? जैसे मुझे नहीं आइडिया पॉडकास्ट के बारे में, और मेरे दिमाग में यही आता है यार इससे पैसे कैसे कमाएंगे. तो वो चीज, तुम अकेले नहीं हो. आई थिंक अधिकतर दुनिया यही सोचती है कि इससे पैसे कैसे कमाएंगे. मेरे सामने जब कोई वो बात करता है तो मैं उनको ये कहता हूँ कि लाइफ में कोई चीज ऐसे करो जो पैसे के लिए नहीं है. करना तो
वरना तो आप डाका डाल के भी अमीर बन सकते हैं, यू नो, अगर आपको पैसा ही कमाना है तो। मेरा, और ये अक्सर दिस इज नॉट अ वेरी वेल टेकन रिस्पॉन्स, बिकॉज पीपल आर स्टिल यू नो कॉन्वोल्यूटेड इन द हेड कि यार यूट्यूब पे भी तो हम आते हैं तो हमें पैसा बनाना है, इंस्टाग्राम पे भी हमें ब्रांड्स बेचने हैं, हमें करना है। It's the same model here. It will eventually happen. Right now in India, like I said, the audience is still building up. ठीक है, तो audience currently बहुत concentrated है, या तो कुछ अच्छे established indie creators के पास है, या फिर production houses, या फिर बड़ी companies like Spotify, JioSaavn, Gaana, you know, because they have the resources and they have उनके platform, existing platform पे audience थी जो music से podcast पे migrate कर रही थी, right? तो उस अभी काफी एक anticipation चल रही है कि स्टिकीनेस क्या है ऑडियंस की, राइट? आप कहते हैं देयर आर 100 मिलियन म्यूजिक लिसनर्स, बट हाउ मेनी ऑफ दोज म्यूजिक listeners are actually sticking long enough to a podcast? Because music songs are what, 3 minutes, 5 minutes, 3 minutes maximum, 4 minutes. Podcast can range anywhere from 5 minutes to 1.5 hours, 2 hours, right? So stickiness is the key over here, and I think Indian market is currently in the phase of developing this stickiness. अभी वो बना नहीं है, क्योंकि अभी लोगों को पता चल रहा है कि अच्छा पॉडकास्ट कुछ होता है, फिर धीरे धीरे उनकी एक आदत बनेगी सुनने की, फिर दे एक्सप्लोर मल्टीपल टाइप्स ऑफ कंटेंट। जब स्टिकीनेस आ जाएगी तब सारे प्लेयर्स आते हैं। क्लिक पर पे जो होता है, पे पर क्लिक, सॉरी, जैसे यूट्यूब का जो मॉडल है, राइट, एड्स के थ्रू मॉडल आता है, तो हाउ मेनी व्यूज आर देयर, आपको वहां से आता है। सिमिलर काइंड ऑफ मॉडल इवेंचुअली विल कम हियर, वेयर you know, you will have certain metrics which will define what is the stickiness of your audience, and based on that you will be given $1 or, you know, local currency amount that's there. So that will definitely happen in one way. The other way, like I said, is if you join hands with a big production house, so they will get some you know, sponsors or advertisers on their show, so the creator can earn money as a, you know, a little bit of cut from that show. So you can say कि ठीक है, मतलब 100% में से 20% मेरा, you know, एक revenue sharing model हो जाएगा. So somebody puts an ad for, let's say, 1 lakh rupees, or let's simplify, let somebody puts an ad for like 10,000 rupees, you get 20% of it, so 2,000 रुपए जो है आपके जेब में आ जाएंगे, इस तरह से, right? So that is one model. The other model is that if you are an indie creator, or either ways, money comes through advertising or sponsorship in some form. राइट, सो आप, लेकिन उन सब चीजों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ऑडियंस या क्रेडिबिलिटी, राइट? आप, मतलब सीधी बात है, आपके ऊपर कोई पैसा क्यों खर्च करेगा? दे आर वांटिंग सम रिटर्न्स, यू नो, दे आर लाइक कि अच्छा, अगर हमने इस पे पैसा खर्च किया है और अगर इसकी एक ऑडियंस है जो सुनेगी, जाएगी या तो डाउनलोड करेगी, द सेम मॉडल एज यूट्यूब, लाइक हाउ द ब्रांड्स गेट इंटीग्रेटेड लिटरली, लाइक लाइफस्टाइल ब्लॉग में तो लिटरली प्रोडक्ट उठा के बोल देते हैं ये खरीदिए। In this case, there are multiple ways, you know, because in audio you can't really show कि ये toothpaste है, ये creams है, but the ways are as simple as that you do a 30-second, 20-second, 10-second plugin, कि, you know, this episode is sponsored by so and so person or so and so brand, or you integrate the brand in your content itself. For example, if I recently had a sponsor on my show and they wanted to do an integration, so I'm now writing a story that includes their company in it and their company offerings and products and everything, so which is a little bit complex, but uski ek alag charm hai, uski ek alag you know investment hai, ek alag energy hai कि आपका जो जितनी बार वो एपिसोड सुनेगा उनके दिमाग में वो चीज रजिस्टर होती जाएगी, versus simply putting like an ad, right? So there is nothing right, nothing wrong, but there are multiple ways of engagement, mostly comes through sponsorship and advertising. And all of that eventually depends कि आपकी credibility क्या है, आपकी audience size कितनी है, and audience stickiness कितनी है। कई बार ऐसा होता है कि audience आपकी बहुत ज्यादा है क्योंकि आपने podcast किसी ऐसी चीज पे बनाया है जो search engine friendly है। Let's say there's a guy who made a podcast called How to Make a Podcast. That is the name of his podcast. So as soon as you Google this, तो automatically सबसे पहले ऊपर आ जाता है, because this is the question. So he has a lot of listeners, but there's not a lot of stickiness, you know, लोग 1 मिनट 2 मिनट बाद ड्रॉप कर देते हैं। तो अगर स्टिकीनेस नहीं होगी तो वो भी आपको पीछे दिख जाएगा कि यार ऐड सुनेगा कौन, अगर आपने तीसरे मिनट पे ऐड डाला और वहां सुनने वाला ही नहीं है तो क्या पॉइंट है, राइट? सो एवरीथिंग काइंड ऑफ होलिस्टिकली कम्स टुगेदर। सो क्वालिटी ऑफ कंटेंट, credibility will bring quality of content will build your credibility will build audience, and that audience size will eventually define the advertiser or the sponsorship that will come to you. But primarily it is through this model. Yes, if you are into the creative part of it,
But like I said previously, if you are in the, like say, a sound designer or in the back end business of things, then it's like any other job. मतलब आप उस प्रोडक्शन हाउस से इन्वॉल्व हैं, आपकी मंथली तनख्वाह आ रही है, या आप उस बड़े ऑडियो स्ट्रीमर के साथ इन्वॉल्व है, आपकी मंथली तनख्वाह आ रही है. तो वो भी एक तरीका है और ये भी एक तरीका है. तो जैसे आपने बीच में बताया कि इंडिया में दिस इज स्टिल इन दैट ग्रोइंग फेज, अभी शुरुआत वाले फेज में है. तो अगर हम कंपेयर करें इंडिया और अब्रॉड की जो अपॉर्चुनिटीज हैं इस पर्टिकुलर रोल के लिए इसमें इंडस्ट्री में, तो उसमें क्या अलग अलग फ्यूचर एस्पेक्ट्स हैं? काफी डिफरेंस है वो. मतलब द वेस्ट इंडस्ट्री इज वेरी मैच्योर इन टर्म्स ऑफ the operating model that is there, the business model that is there, the revenue model that is there. There's a lot of clarity. Even the content has matured over time. वहां पे भी शुरू ऐसे ही हुआ था कि 4 लोग आए, फिर 4 से 40 हुए, फिर प्रोडक्शन सिमिलर तरीके से ग्रोथ हुई. लेकिन अब वहां की ऑडियंस बहुत अलग कंटेंट कंज्यूम करती है. The West is investing a lot in if I talk about the storytelling genre, they're investing as much as like movie series, web series. So web series type production, मतलब web series की जो इंडिया में जो एक आप अगर आप कंपेयर करें, उतनी जितनी इन्वेस्टमेंट लगती है वो वहां पॉडकास्ट पे हो रही है. और उसका एक रीजन भी है, बिकॉज many fiction storytelling podcasts were converted into web series. A very big example is Homecoming on Amazon Prime. It used to be a podcast which then was bought by Amazon and eventually became like a word-to-word, a web series. So there are opportunities that kind over there, and इसलिए वो काफी mature stage पे पहुंच चुका है. ये एक सवाल जो मैं हर मेरे गेस्ट से जरूर पूछती हूँ कि जैसे आपकी जो जर्नी है, आपकी 4 साल की मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देन आपका प्रोफेशनल करियर एक कंपनी में, फिर अभी एक कंपनी में जिसमें आप में काफी अच्छी ग्रोथ जा रही है, एंड विद ऑल द पर्क्स एंड एवरीथिंग, स्टिल आपने डिसाइड किया कि आप एक नया जरूर एक करियर साथ में शुरू करना चाहते हैं, which obviously takes a lot of time. It takes in a lot of your inputs, like 20 to 25 hours every week, and I think उसके लिए काफी पैशन चाहिए, काफी हार्ड वर्क भी लगता है आपका. So आपकी लाइफ काफी आराम से जा सकती थी, बट आपने स्पेशली एक चीज जरूर साथ में शुरू की. So उसका मेन वो रीजन क्या था, वो ट्रिगर पॉइंट क्या था जब आपको लगा कि नहीं, मुझे ये साथ में एक चीज जरूर करनी है? एंड देन इसका आपकी फैमिली में इसका क्या रोल था, आपके जो आसपास के लोग हैं उनका रिएक्शन, एंड आपका उसके साथ डील करना वो कैसा था? It's a very typical reaction of any Indian family whenever a kid is trying to do anything. Like ये तो क्रिएटिव है, तो आधे लोगों को तो ऐसे नहीं पता होता क्योंकि वो खुद भी उस इंडस्ट्री में नहीं होते. तो उनकी तो अलग इमेज होती है कि यार क्रिएटिविटी तो मतलब झोला लटकाए लोग घूम रहे हैं, राइट? तो the reaction was very stereotypical. I know. See, हुआ क्या था यार, जब मैं आया, मैंने अपना करियर स्टार्ट किया. My parents, like any other parents, they are like MBA करो. I said यार, मतलब मेरे को बिना एक्सपीरियंस के करने का मन नहीं है. एंड करियर में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज चल रही है कि उस वक्त वो छोड़ के MBA करना, मुझे वो मैथ जमी नहीं. तो मैं MBA पुश करता रहा, करियर में अपॉर्चुनिटीज आती गई, लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आती गई, सीखता रहा मैं चीजें, स्टोरी टेलिंग चालू हो गई. तो फिर क्या हुआ इवेंचुअली, एंड ऑल ऑफ दिस वाइल, सी देयर इज अनदर इमोशनल ग्रोथ दैट वाज हैपनिंग, लाइक व्हिच आई स्पोक अबाउट अर्लियर. यूजुअली स्टंटेड होती है, बट आई डिसाइडेड इन 2015 के यार आई एम ब्रोकन इमोशनली इनसाइड एट मेनी लेवल्स. आई नीड टू हील दैट फर्स्ट. ठीक है, मैं क्यों कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज मेरे को पैसे चाहिए? द सेम फंडा, पैसा तो यार अगर मैं नहीं भी करूंगा MBA तो आ जाएगा. एंड इवेंचुअली व्हेन आई स्टार्टेड आस्किंग माई सेल्फ at every single step कि क्यों कर रहा हूँ, I became more and more clear कि मैं क्यों कर रहा हूँ. ठीक है, and the only difference between me and probably other people around me were I just took an action. हर कोई सोचता है कि यार हम क्यों कर रहे हैं, but then they are like, oh चलो कुछ डिस्ट्रैक्शन आ गया, भाग लिया उस तरफ. मेरे साथ क्या हो गया कि भले डिस्ट्रैक्शन आ गया लेकिन मेरा दिमाग वहीं अटका रह गया. तो I started taking action. I said MBA नहीं करना, करेंगे 5 साल बाद ही, तब तक जिंदगी प्रॉपर एक्सप्लोर करो, नौकरी में सीखो. उस बीच स्टोरी टेलिंग हो गई, एंड आई यूज्ड टू गो टू मुंबई फ्रॉम पुणे फॉर लाइक 5-7 मिनट स्टोरी टेलिंग, ओपन माइक स्लॉट. दैट वर द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ. सिंपली नॉट बिकॉज के मुझे वहां पे कोई वाहवाही हो रही है, तारीफ हो रही है, वो एक अलग एस्पेक्ट था, बट द एंटायर प्रोसेस के फ्राइडे रात को 2 बजे ऑफिस का काम खत्म करके सुबह 6 बजे की बस पकड़ के, बिकॉज पुणे से मुंबई 4 घंटे लगते हैं, वहां जाना, करना, बैठना, बहुत अंदर से ना बहुत जिंदा दिल फील कराता था यार. ऐसा लगता था मैं जिंदा हूं.
ठीक है, और फिर लोगों के साथ जैमिंग करना, बात करना, वो आप फिर रियलाइज हुआ कि यार मेरा इंटरेस्ट दारू पी के भंड होने में नहीं है, ठीक है, वो मैं हर फ्राइडे नहीं कर सकता, बट मैं हर फ्राइडे लोगों के साथ बैठ के कहानियां सुन सकता हूँ, सुना सकता हूँ, लिख सकता हूँ। वो धीरे धीरे मैंने अपने आप में एक एवोल्यूशन देखा कि मेरे अंदर ये है और मुझे इससे अच्छा लगता है, कि मुझे अच्छा लगता है। मैं थिएटर जाने लगा, मैं कभी नहीं थिएटर किया ना देखा, बट मैं आई स्टार्टेड डूइंग थिंग्स व्हिच एट मोस्ट टाइम्स आई डिड देम अलोन, बिकॉज मेरे सारे दोस्त है भाई थिएटर कौन देखेगा, थिएटर कौन देखेगा, सो दे हम लाइक ठीक है कोई बात नहीं यार, बट मेरे को उस मोमेंट में ना मेरे को जिंदा फील होता है, तो मैं जा रहा हूँ वो देखने के लिए या मैं वो करने के लिए। तो उस टाइम पे ये रियलाइज हो गया एंड धीरे धीरे वही चीज कल्मिनेट हो गई यार। एंड करना था, मतलब एमबीए कर लो, दोस्त सी एमबीए करने से आपकी मनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, या नौकरी करने से मनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है, बट उससे जिंदगी का नजरिया नहीं बनता। और मैं एक ऐसे स्टेज में था जब मेरी लाइफ का परसेप्शन चेंज हो रहा था, ठीक है, तो मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने कहा कि यार एमबीए तो मैं 10 साल बाद भी कर सकता हूँ, 8 साल बाद भी कर सकता हूँ, देयर आर मल्टीपल वेज टू डू एमबीए, मल्टीपल, देयर इज ऑलवेज अ रूट ओपन, राइट, द रोड नॉट टेकन के अलावा जो दूसरी रोड होती है जिसमें सारे लोग चल रहे होते हैं, वो तो हमेशा खुली हुई है। मतलब आज अगर मेरे को वापस अपने जॉब पे आना है, मैं जॉब पे आ सकता हूँ, मेरे को अगर एमबीए करना है मैं कर सकता हूँ। सारे जो स्टीरियोटिपिकल रूट्स हैं वो तो हमेशा ही हैं, जो नहीं है वो ये रास्ते हैं, क्योंकि ये एक बार में आते हैं, और अगर आपने अपॉर्चुनिटी ले ली तो ले ली, नहीं ली तो जयराम जी की फिर वो जिंदगी भर का रिग्रेट है, और मेरे को रिग्रेट नहीं चाहिए था, खत्म बात। मैं यहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ मुझे वो चीज मिल रही है जो लोग 70-80 साल की उम्र में जाके तरस जाते हैं, और मुझे पता है वो चीज। और मैंने बहुत लोगों से मतलब देखा है और सब कुछ देखा है कि everyone's running after the wrong thing. Like people run after money, they should run after time. You can always earn more money, you can never earn time. तो आई थिंक ये हमारी इंटरव्यू का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे आपने एज अ पॉडकास्टर, आपके जो लाल चश्मा सीरीज है ऑलरेडी उसके 24 एपिसोड इतने प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो चुके हैं, जैसे स्पॉटिफाई, ऑडिबल, गाना, जियो सावन वगैरह वगैरह, एंड ऑलरेडी आपने जियो सावन हंट पॉडकास्टर का 2021 का आप जीत चुके हो, उसके थ्रू आपने 2BHK पॉडकास्ट भी रिलीज किया है जियो सावन पे, एंड देन आपको काफी जगह रिकॉग्निशन मिली है, आप कम्यून पे भी फीचर हो चुके हो, और कितने ही सारे अचीवमेंट्स हैं, एंड स्टिल इतनी अचीवमेंट्स के बाद भी इस रोल में स्टिल यू आर कंटिन्यूइंग इट एज अ साइड हसल, आपने पूरा शिफ्ट नहीं किया इसमें, तो उसका एक रीजन क्या है? ऐसा नहीं है, if somebody comes and tells me कि I will meet your current salary that is being offered, then मैं एकदम निश्चिंत होकर काम करूंगा ना। लाइक यार आज जो मैं रिस्क ले रहा हूँ, ठीक है, या जो मेरी एक सर्टेन लाइफस्टाइल है, मैं नहीं छोड़ना चाहता उसको। देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, सम पीपल आर लाइक ठीक है वील मूव फ्रॉम द किंग टू अ पॉपर, लाइक हम बन जाएंगे, ठीक है, हम एकदम सड़क पे स्ट्रगल करेंगे। मुझे ऐसा लगता है यार आई थिंक आई एम लाइक नॉट टू ओल्ड बट स्टिल अ लिटिल बिट ओल्ड टू leave that comfort. Yeah, somewhere trying to find a middle way. And that's why I feel the money coming through my job provides me that security. आज अगर मेरा मन करता है मैं बिल्कुल कभी भी, ठीक है, मन किया उठ के कभी भी सीसीडी चले गए, स्टारबक्स चले गए, थोड़ी देर वहां से लिख लिए, कर लिए। The minute I have to worry about money, I can't do all of that. मेरे को एक 100 रुपए तो सोचना पड़ेगा कि यार तेल का खर्चा भी तो इतना है आजकल। तो I don't want to be in that position till the time podcasting starts giving me some revenue. Also not the thing, I don't hate my job, like I like my job, I genuinely like it. तो मुझे कभी ऐसा लगता है कि if that job is not a part of my life, there are many elements that I will probably not learn which are currently cross applying, cross pollinating a lot of ideas. मतलब मैं जॉब में अगर लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्कैन करता हूँ, SOW स्कैन करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे मतलब पॉडकास्ट साइट पे भी मेरे को बेहतर समझ आती है कि हाउ टू गेट इन अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कंपनी, व्हाट आर सम क्लॉजेस, व्हाट आर सम थिंग्स टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ ऑन। या जैसे अगर मैं जॉब में अगर कुछ पीपीटीज बनाता हूँ, कुछ डेस्क देखता हूँ, तो जब मैं यहाँ पे कोई चीज पिच कर रहा होता हूँ तो मैं वहां से वहां आइडियाज लेके आता हूँ, राइट, व्हिच हेल्प्स मी स्टैंड आउट, बिकॉज आई एम नॉट टेक्निकली लाइक अ क्रिएटर, राइट, आई एम लाइक अ प्रोफेशनल हु इज डूइंग द साइड हसल। तो उसके मुझे ऐसे काफी बेनिफिट्स लगते हैं कि I have the knowledge of best of both worlds. एक creative, like left brain भी चल रहा है, right brain भी चल रहा है, and यहाँ से वहाँ आइडियाज उछालते रहो। कभी तुमको मन किया कि यार कंपनी का जो पॉडकास्ट है उसे कैसे ग्रो करना है, तो people reach out to you कि यार how can we make our company's podcast better, तो मैं यहाँ के आइडियाज यहाँ लगा देता हूँ।
तो उस जुगलबंदी में मजा आता है, वही ठीक लगता है। इसमें तो थोड़ा बहुत एक लिविंग ऑन योर टोज वाली बात भी होती है कि यार अच्छा जल्दी जल्दी काम खत्म करो, फिर स्क्रिप्ट खत्म करनी है क्योंकि रात में रिकॉर्ड करना है और अगले दिन किसी को भेजना है या रिलीज करना है। तो वही वो फिर एनरिचमेंट आती है वहां से, लाइफ में थोड़ा लाइवली फील होता है। तो मेरे को लगता है कि अभी के लिए मॉडल ठीक है। अगर टच वुड अगर आगे चली चीज अच्छी है, जिससे अगर सही में काम यहाँ पे अच्छा आने लगा, अच्छा मिलने लगा और उससे अच्छा होने लगा, probably in future I'll see, but I don't have an immediate plan कि सब छोड़ छाड़ के मैं वहां चला जाऊंगा। थोड़ा मैं दिमाग से भी सोच रहा हूँ कि क्या है। एंड 24 आवर्स ही हैं दिन में, तो मैंने बस 2 चीजों पे प्राइमरी डेडिकेट कर दिया, ठीक है, कि भाई ये और ये, तीसरा फिर अपना हेल्थ वेल्थ सब एक तीसरी बकेट में आ जाता है। तो यू कांट हैव एवरीथिंग इन योर लाइफ, तो आई जस्ट प्रायोरिटाइज 2। आई सेड नौकरी करेंगे, नौकरी का पैसा उठाएंगे, यहाँ लगाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। दैट्स इट। आई थिंक और जो आपने चीज जो बताई है उससे ये चीज जरूर सीख सकते हैं हमारी ऑडियंस के, अगर आपका कोई क्रिएटिव साइड है और बीइंग कमिंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, जो काफी लोग आते ही हैं इंडिया में, और तब भी आपको सेफ्टी भी चाहिए फाइनेंशियली, तो ये बहाना नहीं चलेगा कि आपकी जो जॉब है उसके कारण आप नहीं कर पाए अपना क्रिएटिव साइड या उसको और ग्रो नहीं कर पाए। अगर आप मेहनत डालना चाहते हो तो उसमें डाल सकते हो, देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी। थैंक्स अ लॉट अभय, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग इन। आई थिंक ये काफी सेशन हेल्पफुल होगा हमारी ऑडियंस के लिए, और विश यू ऑल द सक्सेस। होपफुली आपके जो टैलेंट है, आपका जो पॉडकास्ट है, स्टोरी राइटिंग, वो ग्रो करती रहे हमेशा। थैंक्स अ लॉट। Thank you, Bhavni. Thank you for having me. Wonderful conversation. And yes, thank you so much.